everyone, welcome back to New Era Global School in your aptitude class. Myself Neha Vadera and I am teaching you aptitude. So children, we have finished our PA2 syllabus, right? Also we have done some of revision in our last class. Today we are going to do again a short revision of PA2, right? So short revision I am doing just from aptitude test only. What we have done in last class, aptitude test का हमने one chapter I think we have done, right? Today I have selected some question जो आपके chapters related है, जो आपने chapters पढ़ लिए, right? So that question we are doing here, okay? Some of the questions which are in your syllabus, because aptitude test में all the chapters are included. जब हम term 2 तक complete कर लेंगे, then we are able to solve all this. But now we have not finished all that. So that's why I have selected some question for your revision, right? The first one from this, which word is the odd one out? Which is the odd one out over here? So can you see? First word in tuition, student, homework, breakfast. So here breakfast is an odd one out. Why? ट्यूशन, स्टूडेंट एंड होमवर्क इज रिलेटेड टू स्टडी. ये तीनों स्टडीज से रिलेटेड है. सो ब्रेकफास्ट इज द ऑड वन आउट. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. राइट नाउ in this mostly we have not finished the chapter. These are that this you can draw, you can practice water image. just W का उल्टा, A का उल्टा. आपको पता है ना हमने किया था water image का. तो आई टोल्ड यू कि अगर आपको समझ में ना भी आए, जस्ट टेक अ पेपर, राइट वाटर इन दैट, और एक इमेज जहाँ बने आपको रिफ्लेक्शन पड़े वैसे वाटर में रखो. यू कैन सी द रिफ्लेक्शन. इट विल बी पूरा उल्टा आ जाएगा. So this is water. So this you can do yourself. Now the next, this 1 and 2 we have already learned this chapter, analyzing, and ये chapter में से था, right? Now clay is to pottery, gold is to, clay का अगर pottery होता है तो gold का क्या होना चाहिए? goldsmith, ornaments, magicians, right? this 2 is to totally odd. goldsmith नहीं होगा. why? gold जो गोल्ड से सामान बनाता है, दैट इज नोन एज गोल्ड स्मिथ. बट यहाँ क्ले और पॉटरी का रिलेशन क्या है? क्ले से जो पॉटर हम लोग अगर होता तो इट मे बी गोल्ड स्मिथ, बट इट इज़ पॉटरी, थिंग्स है जो चीज़ बनता है. तो गोल्ड से द थिंग्स आर मेड ऑर्नामेंट्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑर्नामेंट्स. चिल्ड्रन, दिस आर शॉर्ट रिविजन, सो प्लीज डू दिस फॉर योर बेनिफिट ओनली, राइट? Now 15 is to 45, then 51 is to, now see 15, 45. What is the relation between these two? You can see 15 ones are 15, 15 threes are 45. यानी कि 3 का multiplication. So 51 3. Yes, that is 51 threes are 153. So this will be your correct answer. So this 2 from this page. Now this one also we have done in blood relation, right? If D is the father of A and B, E is the wife of B, and A is the husband of F, C is the daughter of E, what is the relation between D and C? ये हमें find out करना है, right? We have done this in blood relation, if you remember. So let's do this. We can do this by making a small diagram. See, if D is the father of A and B, so suppose D, right? So D father of D है father of A and B. So first you can see D is the father of A and B, right? Now E is the wife of B. E कौन है? B की वाइफ. So ये B का रिलेशन है. E is the wife, right? E is the wife of B and A is the husband of F.
ए कौन है? हस्बैंड ऑफ एफ, मतलब ए इसका हस्बैंड एफ, ए का हस्बैंड एफ, ए इज द हस्बैंड ऑफ एफ। डन। नाउ सी इज डॉटर ऑफ ई, सी कौन है? ई की डॉटर, सी है ई की डॉटर, राइट। डी इज द फादर ऑफ, डी है ए और बी का फादर। ई इज द वाइफ ऑफ बी, ई कौन है? इसकी वाइफ, मतलब दोनों ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ई इज द वाइफ ऑफ बी, ई इसकी वाइफ है, ई इज द वाइफ ऑफ बी। तो ये अगर वाइफ है तो ऑब्वियसली ये हस्बैंड है इसके, राइट। ये हस्बैंड है उसके, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म, ये इसके हस्बैंड। नाउ सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। नाउ नेक्स्ट इज इफ बी एंड ए इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ए किसके हस्बैंड है? एफ के। तो ये दोनों, ये हो गया हस्बैंड, ए इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ, राइट, ये हस्बैंड एंड वाइफ। सी इज डॉटर ऑफ ई, सी किसकी डॉटर है? ई की, यानी कि दोनों, इफ दिस बोथ आर हस्बैंड वाइफ तो इन दोनों की बेटी सी, राइट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड सी? अब हमें डी और सी का रिलेशन फाइंड करना है, राइट। अब देखो, ये डी इज द फादर, मतलब ये इसके फादर है बी के। अब फादर की बेटी एंड उसकी बेटी, तो ही विल बी ग्रैंडफादर, सिंपल। इसका रिलेशन क्या होगा? सी फादर, देन ये हो गई, ये उसका हस्बैंड और ये उसकी डॉटर, मतलब ये उसका सन या ये उसकी डॉटर। इसका रिलेशन क्या हो गया? ग्रैंडफादर, सिंपल। सो योर आंसर विल बी ग्रैंडफादर। क्लियर? जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम एंड इसको क्लियर करो, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सिंपल है, लगता है ये सिंपल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इस वजह से करोगे देन इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, सी कोई भी चीज़ को अगर घुमा के पूछते हैं तो इट लुक्स लाइक अ टफ, बट अगर आप सॉल्यूशन इसका ग्राफ बना के करोगे इट विल बी इजी फॉर यू। डी इज द फादर ऑफ ए एंड बी, राइट। ई इज़ द वाइफ ऑफ बी, ई कौन है? इसकी वाइफ, तो ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया। अब इसकी ये डॉटर, तो ऑब्वियस है हस्बैंड वाइफ की डॉटर ये सी। अब इनका रिलेशन इसका पूछा तो इसका बेटा, उसकी बेटी, तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस टू? ग्रैंडफादर, है ना। डी इसका सी का ग्रैंडफादर, सो योर आंसर विल बी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, right? Now this questions, marks is to student, then waiter will be C. मार्क्स मीन्स जो स्टूडेंट को मिलते हैं, तो वेटर को क्या मिलता है? डिसिप्लिन, टिप, स्माइल या ऑर्डर? इट्स सिंपल, यस टिप ओनली, क्योंकि वेटर को हम टिप देते हैं। मार्क्स, स्टूडेंट को मार्क्स देते हैं तो वेटर को टिप देते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इफ मॉर्निंग इज कॉल्ड ओनियन, ओनियन इज कॉल्ड स्टार, स्टार इज कॉल्ड बटर एंड बटर इज कॉल्ड एक्टर, then during night what do we see in the sky? मॉर्निंग को अगर ओनियन बोलते हैं, ओनियन को स्टार बोलते हैं, स्टार को बटर, बटर को एक्टर, मतलब ये पूरा कोड वर्ड में दिया हुआ है। देन ड्यूरिंग नाइट व्हाट डू वी सी इन द स्काई, स्काई में हम क्या देखते हैं रात को? स्टार। स्टार को यहाँ क्या बोलते हैं? यू हैव टू फाइंड दैट। ओनियन इज कॉल्ड स्टार, स्टार इज कॉल्ड बटर, स्टार को बोलते हैं बटर, तो आंसर विल बी butter, right? So these questions are included in your chapter what we have done already, that's why मैंने short revisions करवाया इसमें, so that you can practice from this also and
इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व दैट PA2 पेपर, अगर आप ये सब सॉल्व करते हो तो। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसके आगे जितने भी ये टेस्ट पेपर्स है उसमें से आपको लगे जो चैप्टर्स हमने कर लिए उसके क्वेश्चन से, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, राइट। दिस मच फॉर टुडे, एंजॉय योर डे, बाय, सी यू, टेक केयर।